and very warm welcome to everyone. It gives me an immense pleasure to welcome you all to this wonderful session, Coffee with Conversation Decoding the Science of Self-Talk. I extend heartfelt welcome to all the members of Lucknow Management Association, members of Mindspark, members of Health Trust, Ms. Rupal Agarwal ma'am is also here, and the members of Old Association Boys, AMU Old Boys Association. A very warm welcome to all the members and all the members who are associated with these organizations. So we truly honored to have our eminent guests from diverse fields who will sharing their insights on the role of self-talk and mindset in professional as well as personal excellence across education, corporates, leadership and personal development and community well-being. So today we have a guest from different sectors, so I'll invite Dr. Anita Bhatnagar Jain ma'am on the dais. I will request she is the author, story narrator and environmentalist. As an administrator, she will share how this book helped as a civil servant. Please ma'am, you can see the profile on the screen. Next, I invite Wing Commander Dr. Anil Kumar, your Deputy Pro PC Chancellor, Amity University, Lucknow. As an academician, he will highlight its relevance for faculty, staff, and students. Next, I invite Dr. Archana Shukla ma'am, Head of Department of Psychology, University of Lucknow, and moderating the today's session. Next, Mr. Rajneesh Sethi, MD, Rapo Agrochem Private Limited, and Honorary Secretary, Lucknow Golf Club. And he will share his expertise on the as a corporate. Lastly, but not least, I'll invite Professor Dr. Manju Agarwal, Founder, President, Mindspark, Professor Emeritus and the author of the inspiring book, Psychology of Self-Talk. We should give a huge round of applause for Dr. Manju and all the innovators. So today we gather here to explore something that touches our lives. That is our self-talk. यानी अपने आप से की जाने वाली बात. Someone has beautifully said, the most important conversation will you have ever is the one you have with yourself. How many of you agree with this line? कौन कितना conversation करता है अपने आप से? I think everybody कुछ ना कुछ conversation होता है अपने आप से. So I am also happy to share that the book Psychology of Self-Talk has received the Golden Winning Book Award 2026 and the Promising Pen Award. So the huge round of applause for Dr. Manju Agarwal and the remarkable achievement. Congratulations, ma'am. So before we move ahead to the program, I invite Mr. Rahul Dhar, Secretary LMA, for the LMA vision and mission and announce the release of the book. Ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. It's a pleasure to welcome you to this special occasion where we gather not merely to launch a book, but to celebrate a mind that has spent years negotiating with the most talkative companion any of us have, our own inner voice. So, before we start the program, customary we have LMA vision and mission, then only we open our talk, our program. So I'll request you all to please stand for repeat after me. LMA vision, a high profile, vibrant body of professionals contributing to make UP as Uttar Pradesh. LMA mission, we sensitize and catalyze individuals, institutions and communities to actualize their potential. Thank you. Please have a seat. Secretary of LMA, I am delighted to open this event. Let's begin this evening by celebrating the author and the remarkable work that brings us all together, Dr. Manju Agarwal. So a big round of applause to her first of all. May this launch inspire all of us to speak to ourselves with a little more clarity and a little more courage. The book on psychology of self-talk, written by
Professor Dr. Manju Agarwal, is a life-changing book, offers practical wisdom and scientific insights into the profound impact that sounds and words have on our day-to-day lives. That is very important. What we speak to ourselves, some very important words we should speak every day. These are the things which she has explained in her book. In the first section of the Psychology of Self-Talk, Professor Manju Agarwal beautifully explains the energy certain words carry and the science behind them. With research-backed evidences, the book demonstrates how chanting specific Sanskrit mantras help us in our day-to-day life. The second section of the book functions like a mind spa. It introduces Mindy Cure, a set of 7 powerful and easy to adopt mantras created by Professor Agarwal, no doubt about it. These mantras offer simple techniques to cleanse and rejuvenate the mind while guiding readers towards mindfulness, emotional balance, and inner clarity. I also welcome our guest who is sitting on the dais, Dr. Anita Bhatnagar Jain, IAS retired. She is an author, story narrator, and environmentalist. Second, we have Wing Commander Dr. Anil Kumar, Deputy Pro Vice Chancellor, Amity University, Lucknow. A big round of applause to him also. I think he is coming for the first time here in this program. And Mr. Chandrasekhar Verma, who is a very popular storyteller, trainer, coach, who is master and whatnot. He is always there on the social media and a very good singer also. And he made others to sing also. And next we have a very important guest we have today, Mr. Rajneesh Sethi. He is the Managing Director of Rako Equitable Private Limited and Honorary Secretary of Lucknow Golf Club. And I can see many of you are also a member of Lucknow Golf Club also. And I also keep going to Golf Club and people are sitting in front of the row. They are also Agarwal sir. They are all members of the Golf Club, so we keep going to Golf Club also. Now I think we should start for the first of all, we will have a release of the book, the launch of the book. Dr. Rachna Shukla, who is the moderator of the program, and we welcome her. She also come I think for the first time here in the program. So I welcome her. And first we have the launch of the book. Thereafter I'll hand it over to the moderator, Dr. Rachna, to take the program, start the program. First we launch the book. Request Renu to come on the dais. Thank you and congratulations, ma'am, once again. Before moving ahead, I request all the members who are sitting here, and I think you already have seen that the Rupa publication stall has put up at the back side. So you can visit there and you can pick a copy of Psychology of Self-Talk, written author by Professor Manju Agarwal. So, and I personally recommended this book, and I have also gone through the book, and it's truly opened the mind to the power of positive self-conversation. It's offer wonderful insights for our daily life. Dr. Manju Agarwal has beautifully presented simple ideas with a simple exercise, and the most important, the book concept deeply with the mental, emotional, and physical well-being of the individual. So I recommend that you can please buy the book. So now, to begin this soulful conversation, I would like to invite our esteemed guest, Professor Dr. Manju Agarwal, author of Psychology of Self-Talk. Ma'am, we would love to hear from you that what inspired you to write this remarkable book and what message do you wish to convey? सबसे पहले आपको थैंक्स, आपने बहुत पेन लिया है इसको, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए. So my heartfelt thanks to LMA, Help You Trust, Aligarh Muslim Boys Association and Mindspa for coming together for this event and contribute there in organizing it. And I'm so thankful to LMA particularly and Mathur Sahab, जिन्होंने और रेनू जी एंड राहुल जिन्होंने सब मिलके बहुत सारी मेहनत की. And I'm truly grateful to my panelists who really agreed to spare their time and come here and join me. आप सब बहुत बिजी हैं, ज़्यादातर लोग ट्रैवल कर रहे थे, फिर भी उन्होंने टाइम निकाल के आप आए और इस रिक्वेस्ट को एग्री किया. सो आई एम ट्रूली थैंकफुल टू ईच ऑफ यू. एंड जैसा राहुल ने अभी बोला था कि LMA का मोटो है इनर पोटेंशियल को जागृत करना, तो ये किताब भी उसी मोटो को लेके चलती है. और इनर पोटेंशियल, हम सब में पोटेंशियल छुपा रहता है, दबा रहता है, और बहुत सारी चीज़ें हम अपनी
सेल्फ टॉक कर करके और दबा देते हैं। तो कैसे हम इस इनर पोटेंशियल को बाहर निकालें, उसके बारे में है ये बुक। मैं बहुत थोड़ा ही बोलूँगी, आपसे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ और लोग बोलें जिन्होंने पढ़ी है। एक बेचैनी का आउटकम है जो लगभग 3 दशकों से चल रही थी, और एक बेचैनी ये थी कि कैसे हम साइकोलॉजी को या बहुत सारी मोडालिटीज़, थेरेपीज़ जो मैंने सीखी, हिप्नोथेरेपी, EFT, बहुत सारी चीज़ें जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपने क्लाइंट्स के संग। बट हमारे पास क्लाइंट्स तो बहुत एक फ्रैक्शन आते हैं किसी भी हम साइकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि मेंटल वेलबींग के बारे में बात करना, किसी के पास जाना, हेल्प लेना आज भी टैबू है। जबकि फिजिकल वेलबींग के बारे में बात करना, हेल्प लेना, चर्चा करना, जो भी घर में आता है हम उससे बताते हैं, फ़ोन पे बताते हैं कि हमें क्या बीमारियां हैं, क्या परेशानियां हैं, हम इस वजह से नहीं आ पाए। बट अगर मान लीजिए हमको एंगर इश्यूज़ हैं, अगर हम अपसेट हैं, डिप्रेशन में हैं, या हमारे अंदर कोई टर्मोइल चल रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो हम इसकी चर्चा कभी नहीं करते। बिकॉज हमसे लोगों ने कहा है कि आप स्ट्रॉन्ग बनिए और खुद इससे बाहर निकलिए। तो वो कैसे आप स्ट्रॉन्ग बने और कैसे आप खुद इससे बाहर निकले, इसी के लिए मेरी बेचैनी थी कि कैसे हम आप तक पहुँचे जो 99.9% कभी इसके बारे में ना चर्चा करते हैं, ना बात करते हैं, ना हेल्प लेते हैं, उनको कुछ ऐसी चीज़ दे पाए जिनमें कोई प्रीचिंग ना हो। क्योंकि जितनी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं उनमें ज़्यादातर प्रीचिंग होती है, या बाय पॉजिटिव थिंकिंग, या पॉजिटिव थिंकिंग के क्या लाभ हैं, इस पे बातें होती हैं, जो लेक्चर्स भी होते हैं। बट कैसे क्रिएट करें पॉजिटिव थिंकिंग आसानी से, इस पे थोड़ा मुझे कम मिला। तो उसी उद्देश्य से फिर इस किताब की उत्पत्ति हुई। और तो मैं ये कहना चाहूँगी, बेचैनी भी अच्छी होती है, स्ट्रेस भी अच्छा होता है, फियर भी अच्छा होता है, एंगर भी अच्छा होता है, टर्मोइल भी अच्छा होता है एक एक्सटेंट तक। डेफिनेटली वो हमको वार्न करते हैं, हमको प्रिपेयर करते हैं अपने एक्शंस के लिए। और जब ये एक लेवल तक से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये हमें हमारे अंदर, कभी कभी कोई अपसेट हुआ, वो हमने, कुछ लोग उसको 2 मिनट में, 5 मिनट में निकाल देते हैं, कुछ उसको 1 दिन रखते हैं, कुछ 10 दिन रखते हैं, कुछ महीनों और कुछ 20-20 साल तक अपने अंदर रखे रहते हैं। और वो जो हम रखे रहते हैं वो हमारे फिजिकल एज वेल एज मेंटल रूप में, डिजीजेस के रूप में, डिस्टर्बेंसेस के रूप में मैनिफेस्ट होता है। तो एक सेल्फ टॉक एक टूल है जो 24 आवर्स हमारे पास है, और ये सेल्फ टॉक ये डिसाइड करता है कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। आपकी कोई थॉट आई, मान लीजिए कोई आपको टारगेट पूरा करना है, या आपके यहाँ कोई गेस्ट आने वाला है, तो भी अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई गेस्ट आने वाला है और कोई अच्छा गेस्ट आ रहा है, तो आपकी सेल्फ टॉक शुरू हो जाएगी, हम ऐसे एंजॉय करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, ये करेंगे, ये जगह विजिट करेंगे, इस होटल में जाएंगे, इस रेस्टोरेंट में जाएंगे, और पुरानी बातें भी आपको याद आती हैं जो उस व्यक्ति के साथ आपने बिताई थी, मे बी वो आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। बट वहीं अगर, ऑल्दो आई डोंट वांट टू टेक दिस एग्जांपल, मान लीजिए कोई टिपिकल मदर इन लॉ आ जाती हैं जिनसे आपके 36 के आंकड़े हैं, और जिन्होंने पिछली बार विजिट में आपके यहाँ काफ़ी रायता फैलाया था, और पता चलता है वो आ रही हैं, तो आपकी टॉक चलती रहती है, हे भगवान, पिछली बार इतना ड्रामा हुआ था, इस बार क्या होगा, कैसे होगा, इस बार वो ये कहेंगी तो मैं ये बोलूँगी, ये करूँगी, ऐसे उनको ट्रीट करूँगी। आप प्रिपेयर भी करते हैं इस तरह, एज वेल एज अगर आप लगातार नेगेटिव करते रहते हैं तो आप, जैसे आपका एग्ज़ाम है और आप लगातार कहेंगे हम तैयार नहीं हैं, कैसे होगा, एग्ज़ाम में नंबर नहीं मिलेगा, मैं फेल हो जाऊंगी, और फेल हो गई तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी, और ये सेल्फ टॉक करते करते आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे। और शायद जो सुसाइड्स आजकल होते हैं उनके पीछे इसी तरह की सेल्फ टॉक होती है, मेरे माँ बाप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, बेहतर है आई शुड एंड माई लाइफ। और अगर आप ये कहना शुरू करें कि ठीक है एग्ज़ाम है, इट इज़ वन एग्ज़ाम, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, अगर अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं अगली बार ट्राई करूँगी, आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट, तो आपका मोटिवेशन होता है और आप अपने को चेंज करते हैं, आप एक्शन लेने के लिए प्रेरित होते हैं। तो सेल्फ टॉक इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड जैसे जी ने कहा, राहुल ने कहा, जो फर्स्ट पार्ट है बुक का, में काफ़ी हम लोग क्या लगातार कोई भी रिलीजन हो उसमें चैंटिंग, हेम, प्रेयर क्यों होती है, क्योंकि वर्ड्स में एनर्जी, और बहुत सारी स्टडीज़ इसके ऊपर हुई हैं जो बहुत सारी उसमें दी भी हुई है। बट
स्टडीज़ भी एक नैरेटिव एंड स्टोरी एंड बायोग्राफिकल रूप में दी हुई है, जिससे आपको मज़ा आए उनको पढ़ने में। दूसरा जो इसके पीछे मोटिवेशन था वो था कोविड-19 में मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे फ़ोन कर रहे थे बिकॉज बहुत डिस्टर्बेंस, उनमें मेंटल डिस्टर्बेंस बढ़ गया था और वो कोप नहीं कर पा रहे थे। एंड देन आई रियलाइज कि एक्चुअली इनकी सेल्फ टॉक जो है वो बड़ी नेगेटिव हो गई है। एंड उनकी सेल्फ टॉक में इस तरह की चीज़ें आ गई थी कि पता नहीं मैं अपने माँ बाप को देख पाऊँगी कि नहीं देख पाऊँगी, उनके लास्ट राइट्स में शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा, एंजाइटी हो रही थी। तो वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे थे, मेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। और जो इस तरह की बातों में उलझते जा रहे थे उनकी मेंटल हेल्थ और ख़राब होती जा रही थी। उस समय मैंने पहली बार I was also in a condition, my husband was in the hospital, everyone in my family was down with COVID, so I could not attend them one to one. बट उस समय फिर मुझे लगा कुछ करने की ज़रूरत है, तो मैंने काफ़ी रिकॉर्डिंग की अपनी आवाज़ में और उन लोगों को भेजना शुरू किया। जब मुझे टाइम मिलता था मैं रिकॉर्ड करके उनको भेज देती थी और वो उनकी सेल्फ टॉक को चेंज करने के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें रिकॉर्ड करके भेजती थी। और जब उनको बहुत अच्छा लगा वो सुन के और उन्होंने फीडबैक दिया कि हमें काफ़ी रिलीफ मिला, इससे काफ़ी पॉपुलर हुए वो वीडियोज़ जो अभी यूट्यूब पे मेरे चैनल माइंडस्पा चैनल है उसमें पड़े हुए भी हैं, जिसमें मेडिटेटिव सेल्फ टॉक करके फिर मैंने और विषयों पे भी ये बनाए एंड लोगों ने इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया, उनको लगा कि इट्स हेल्पिंग देम। तो मुझे लगा अब और आगे जाने की ज़रूरत है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं, दिस इज ऑफ मिल्टन एरिक्सन। मिल्टन एरिक्सन एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट थे जब वो कुछ भी नहीं थे, 17 साल की उम्र में। और जब उन्हें किसी भी थ्योरी के बारे में, किसी भी हिप्नोसिस के बारे में, किसी भी सेल्फ टॉक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, 17 years में उनको पोलियो हो गया एंड ही वॉज एब्सोल्युटली क्रिपल्ड एंड कन्फाइंड टू व्हीलचेयर एंड बेड, couldn't do anything। डॉक्टर्स ने उनकी बहुत खराब प्रोग्नोसिस की थी। तब उन्होंने उनको कुछ ब्रेन वेव आई, उन्होंने अपने हाथ पैर को ऑब्जर्व करना शुरू किया और कहना शुरू किया, मेरे हाथ काम कर रहे हैं। उनको विजुअलाइज करते थे और बोलते रहते थे, मेरे हाथ काम कर रहे हैं, मेरे पैर काम कर रहे हैं, मेरे हाथ काम कर रहे हैं, मेरे पैर काम कर रहे हैं। एंड टू द डिसबिलीफ ऑफ द डॉक्टर्स and perhaps his own self, he recovered out of initial paralysis of polio, जो कि एकदम untreatable था, जिसके बारे में प्रोग्नोसिस बहुत खराब थी। He came out of it और फिर उन्होंने हिप्नोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए की स्थापना की। मिल्टन मॉडल, एरिक्सन मॉडल पूरे साइकोलॉजी एंड साइकियाट्री की फील्ड में बहुत बहुत फेमस है। सो दैट इज द पावर। ऐसे ही उनके संग एक बार हुआ था, डॉक्टर ने कहा कि अब आप कल सुबह तक नहीं बचेंगे एंड यू कांट सी द सनराइज ऑफ टुमारो मॉर्निंग। उन्होंने कहा आई एम गोइंग टू सी द सनसेट एंड नॉट ओनली ही सॉ द सनसेट, ही लिव्ड मेनी इयर्स आफ्टर दैट। एक और एग्जाम्पल अगर दें, प्राण प्रतिष्ठा, जो हम मंत्र बोलते हैं, मंत्रों के उच्चारण करते हैं, उनसे 3-4 दिन तक एक पत्थर की मूर्ति बनाई जाती है और उनके रिचुअल्स होते हैं और उनमें बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण लगातार होता है कि उस पत्थर की मूर्ति में भी प्राण आ जाते हैं। और अभी रिसेंट एग्जाम्पल है जिसमें अयोध्या में जब ये प्राण प्रतिष्ठा की गई तो जो मूर्तिकार था, एक तो जब पट्टी खोली जाती है मूर्ति की तो उसमें इतनी एनर्जी आंख में आ जाती है कि सामने मिरर रखा जाता है, कोई खड़ा नहीं होता एंड वो मिरर प्रायः टूट जाता है। इसमें भी ऐसे ही हुआ था। मूर्तिकार ने कहा कि मैं अपनी मूर्ति नहीं पहचान पा रहा हूँ। इसका काफ़ी कवरेज आया था मीडिया पे कि मूर्तिकार ने कहा मैं नहीं मूर्ति पहचान पा रहा हूँ बिकॉज इट हैज़ चेंज्ड सो मच। तो जब पत्थर की मूर्ति शब्दों से, रिचुअल से और मंत्रों से बदल सकती है और उसमें प्राण आ सकते हैं, एनर्जी आ सकती है, तो हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं और 70% हमारी बॉडी वाटर की है एंड वाटर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है शब्दों की एनर्जी को। So if we talk positively, if we keep on saying about good things about ourselves, but if we keep on saying I'm inadequate, I'm inferior, I can't do, I can't compete, तो हमारी वो एनर्जी बॉडी की उसी तरह हो जाती है और फिर हम नहीं कर पाते हैं। तो इसमें जो सेकंड सेक्शन है इसमें बहुत सारे हम लोगों ने स्टोरीज भी दी हैं, जैसे अमिताभ बच्चन की, अरुणिमा सिन्हा की, रॉजर बैनिस्टर की। किस तरह ने यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट अमिताभ बच्चन। और सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन, और नहीं जानते हैं अमिताभ बच्चन कि बैंकरप्ट हो गए। बट अगर आप उसको पढ़ेंगे किस तरह से उन्होंने अपनी कौन सी सेल्फ टॉक की जिसकी वजह से वो बैंकरप्सी से फिर दोबारा he is still popular and is still working and he came out of the bankruptcy and his
बैड करियर, पिक्चर्स फ्लॉप होती गई, 12 पिक्चर एक साथ फ्लॉप हुई, स्टिल ही केम आउट. सिमिलरली अगर हम अरुणिमा सिन्हा को लें तो उसका लेग एम्प्यूट हो गया था एंड शी वाज अ वॉलीबॉल प्लेयर और 6 महीना बिस्तर पे पड़े शी स्टार्टेड सेइंग आई एम गोइंग टू क्लाइंब द एवरेस्ट. एवरीबडी ब्रांडेड हर एज मैड, तुम बेकार की बातें कर रही हो, पागल हो गई हो. डिड इट. फिर जैसे वो संकल्प ले लेते हैं या हम उसके बारे में बार बार बात करते हैं, अपने से सोचते हैं एंड वो माउंट एवरेस्ट पे जाके उन्होंने भारत का झंडा फहराया prosthetic leg के साथ, and she was the only amputee who could go there. So this is the power of self-talk. What you are talking to yourself, they are not aware. 16 घंटे अगर हम ब्रेकिंग स्टेज में हैं तो उसमें 8 घंटे से ज़्यादा हम अपने से बातें कर रहे होते हैं. क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आपके पास एक बहुत पावरफुल टूल है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आप चाहें तो अभी आप इसको मैं आपको एक्सपीरियंस कराऊँ, 2 मिनट करेंगे. कराइए. तो जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, टेक 3 डीप ब्रेथ्स and allow your mind and body to relax totally and completely. Just relax yourself. Give permission to your mind and body. Take 3 deep breaths. Let the breath become rhythmic. Focus on your breath. And as I say 3, 2, 1, you will pick up some significant negative event of your life. 3, 2, 1. Pick up a significant negative event of your life and just be with the event. क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, क्या सुनाई पड़ रहा है, क्या महसूस हो रहा है. और आप में से बहुत लोग कहीं ना कहीं बॉडी के किसी पार्ट में कोई सेंसेशन महसूस करेंगे, कोई पेन महसूस कर सकते हैं, कोई झंझनाहट महसूस कर सकते हैं. फील दैट किसी भी प्रकार का हैवीनेस, सेंसेशन, झंझनाहट, और वहाँ पे वो फील हो रहा है वहाँ पे टैप करिए और बोलिए आई रिलीज, आई रिलीज, आई रिलीज. जहाँ भी आपको वो हैवीनेस, चाहे चेस्ट में हो, बैक में हो, सर में हो, कंधे पे हो, तो वहाँ पे आप टैप करिए और बोलिए आई रिलीज, 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 आई रिलीज एंड आई रिलीज. टैप करते जाइए और बोलते जाइए आई रिलीज, आई रिलीज, एंड यू विल फील द डिफरेंस. सो थैंक यू वेरी मच. And you must have experienced the relation between mind and body. They are not separate, and even in 2 minutes or 1 minute we can bring a change in our own mental state and physical state. So I'll stop here, and I would like to hear from the panelists who are really renowned and have gone through the book. So thank you very much. So now it's time to welcome our guest with a presentation of Memento. I will request following dignitaries for the facilitating ceremony. Dr. Manju Agarwal, Founder, President, Mind Spa, kindly honor Wing Commander Anil Kumar. Please give a huge round of applause. Now I request Ms. Anuradha Goel to Mr. Rajneesh Sethi. Anuradha Goel, ma'am. Next, Air Commander Manish Agarwal to Dr. Archana Shukla. Dr. Rupal Agarwal to Dr. Anita ma'am. I think we should give a huge round of applause to our guests. Next, we have one more association, AMU Old Boys Association, who have all want to facilitate our guest. So I will invite Shaila ji from AMU Old Boys Association, who will present the shawl and welcome our guest. Shaila ji is a General Secretary of AMU Old Boys Association. Thank you, Shaila ji. And now we'll move forward to our today's discussion. So sit back, and if your tea is not here, so you can take your teas and enjoy today's session. So now to take this beautiful session forward and moderate today's discussion, I will invite Dr. Archana Shukla ma'am, Head Department of Psychology, University of Lucknow. So ma'am, now the mic is yours and the dice is also yours. A very good evening to all. आप सभी को मेरा नमस्कार. आज जिस प्रोग्राम में मुझे इनविटेशन मिला है, सबसे पहले तो मैं LMA को धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझको ये मौका दिया गया. माय वेरी फेवरेट, नॉट एग्जैक्टली टीचर,
बट मैम से मैंने पढ़ा नहीं है, बट माई वेरी वेरी फेवरेट टीचर whom I really look up to is मैम। महीनों बाद भी मैम से बात होती थी तो वो जो आज पॉजिटिविटी और इतनी सारी बात हो रही है वो फ़ोन से ही आ जाती थी। तो आई एडमायर हर अ लॉट एंड लुक अप टू हर पॉजिटिविटी। और जब ये बुक का मुझे प्रपोजल और सारी चीज़ें पता लगी तो मुझे लगा ये मैम ने थोड़ा सा जो फ़ोन पे पॉजिटिविटी होती है वो थोड़ी सी जोड़ करके बुक के फॉर्म में इसको निकाल दी। मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग एस्पेक्ट नहीं था। शी इज़ सो डायनेमिक, शी इज़ सो इंस्पायरिंग। जब जहाँ मुलाकात होती है तो वी रियली हम लोग को सेल्फ टॉक करने पे मजबूर हो जाते हैं कि अभी बहुत कुछ है करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस मैम ऑन दिस वेरी वाइब्रेंट एंड डायनेमिक वेंचर। क्योंकि हम भी साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो मैम की बहुत सारी कई बातों को हम जोड़ पाए। हम लोग अंदर झांकना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इस सब पे साइकोलॉजी बहुत बात करती है। और सीधे सरल शब्दों में कहा जाए तो हम लोग कहते हैं अगर हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जीवन में जानते हैं तो हमसे खतरनाक कोई व्यक्ति नहीं है। पर कहाँ होती है कि हम पूरी जिंदगी इस बात पे में उलझे रहते हैं कि दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, इस पे पूरी जिंदगी चली जाती है। तो मैम की बुक उस बात को मोटिवेट करती है और लोगों को इंस्पायर करती है कि अगर आप अपने अंदर झांकें और अपने आप को जाने तो जीवन में यकीन मानिए आपसे ज़्यादा खतरनाक कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। क्योंकि आपको कोई गुस्सा नहीं दिला सकता अगर आप चाहें ना, आपको कोई खुश नहीं कर सकता जब तक आप चाहें ना। तो ये जो सेल्फ टॉक बुक का टाइटल है ये बहुत ही क्या बोलेंगे 205% पॉजिटिविटी लोडेड है। और सेल्फ टॉक में बहुत बहुत क्षमता होती है और मुझे लगता है इसको पुरानी अगर थोड़ी कहावतों से जोड़ दें तो बड़ी अच्छी सी मुझे अभी क्लिक हुई, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपने अंदर से सोच लिया हम जीत जाएंगे। मैम ने अभी कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी दिए। तो आई थिंक द बुक इज अ वंडरफुल कलेक्शन ऑफ दीज आइडियाज। और आम व्यक्ति इसको कैसे समझे इसके लिए मैम ने बहुत बहुत मेहनत से और बहुत अच्छा प्रयास किया। क्योंकि आज का काम मॉडरेशन का है और लोगों से भी जानना है कि उनकी क्या राय है या वो क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले मैं अनीता मैम से जानना चाहूँगी। मैम यू आर अ ब्यूरोक्रेट एंड एन एनवायरमेंटलिस्ट। आपको क्या लगता है कि इस तरीके का जो टॉपिक है, ये तरीके की जो सोच है वो आपके एरिया में, आपकी जो फील्ड है जहाँ पे आप ब्यूरोक्रेट्स के साथ डील करते हैं, कितनी इफेक्टिव है और उनको ये बात समझा पाना। क्योंकि आपकी जॉब में जैसे कहते हैं हर समय स्ट्रेस का लेवल प्रिवेल ही रहता है, उस समय अपने आप को रिलैक्स करना थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप इस पे क्या कमेंट करेंगे कि इस तरीके का सेल्फ टॉक जिसकी इस बुक में बात की गई है वो लोगों को कैसे फ़ायदा दे सकती है या लोग उससे कैसे बेनिफिट हो सकते हैं? अनीता मैम। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि सिविल सर्विसेज में मेरा एक विषय साइकोलॉजी था। अरे वाह, ये ग्रेट मैन थिंक अलाइक वाली बात हो रही है। लेकिन मैं आप लोगों की तरह विशेषज्ञ नहीं हूँ मनोविज्ञान की। लेकिन मेरे ख्याल से न केवल हमारे प्रशासनिक क्षेत्र में हर एक व्यक्ति के जीवन ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग तरीके की समस्याएं सबके जीवन में, और चाहे कोई भी आपका पेशा हो। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे विभिन्न जो हमारी पोस्टिंग्स होती हैं कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ कि कानपुर डिविजनल कमिश्नर थी और कानपुर और उन्नाव के बीच में एक टापू था जिसमें 4000 लोग थे। हमें हरिद्वार से ये सूचना आई कि 36 घंटे के अंदर इतने 1000 क्यूसेक पानी यहाँ आने वाला है। तो मेरे डीएम ने मुझे फ़ोन करा और कहा मैम 36 घंटे में वो पानी आ जाएगा। 4000 लोग हैं और करीब वहाँ पर 800 पशु थे। तो मैंने पूछा कि अच्छा हमारे पास नाव की सूची है, कहाँ कहाँ है, क्या है, कैसे उन्हें निकालेंगे। क्योंकि तुरंत दिमाग में ये आया कि नहीं, जो भी है हमें सबको सुरक्षित निकालना है। और बड़ी समस्या थी क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी मतलब चिंताजनक स्थिति आ रही थी, तो एकदम से हमें बहुत दूर दूर से नावें मंगानी पड़ी। मुझे कानपुर में इलाहाबाद से भी नावें मंगाई और भी व्यवस्थाएं की, और फिर जो लोग थे वो वहाँ से हिलने को नहीं तैयार थे। तो लेकिन सबको और अपनी टीम को और हम सबको कि नहीं, हम भी कर सकते हैं, हमें एक एक को बचाना है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वहाँ छूटेगा। और जब आप नाव से जाते हैं तो इतना तेज़ बहाव था कि आप सीधे पहुँचने के बजाय कहीं और पहुँच जाते थे, और जब वहाँ से लेके चलते थे तो यहाँ आने के बजाय और आगे जाते थे। लेकिन इस प्रकार का कि हम सब ये सोचे कि नहीं, हम इसे कर सकते हैं, और अंततः सब लोग मिलकर के पूरी टीम सफल हुई और सभी काम, एक भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुँचा, हम सबको वहाँ से निकाल दिया। तो चाहे जितनी विषम परिस्थिति हो, हम अगर ये सोचें कि हम ये कर सकते हैं तो ज़रूर किया जा सकता है। जैसे मेरे पास एक पोस्टर है, आज भी है, मेरे कॉलेज के ज़माने से है, बहुत ही प्रख्यात सेइंग है, आप में से सब लोग जानते हैं, इफ़ यू थिंक यू कैन, यू कैन।
तो मेरा तब का है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने सोशियोलॉजी में मैंने किया था और अब तो मैं सेवानिवृत्त भी हो गई हूँ। तब भी वो है क्योंकि वो एक सेल्फ टॉक है कि जो हम चाहते हैं जरूर कर सकते हैं। मैंने तो बात कही तो मुझे बात याद आ गई, कहीं मैंने पढ़ा था द वर्ड इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। तो सिर्फ सोचने की बात है और मुझे लगता है जो यंग जनरेशन है आज, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उनको तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि पता नहीं मेरा अपना एक्सपीरियंस बच्चों के संग जो रहा है उनका प्रयास बहुत थोड़ा ही करके ये नहीं हो सकता, ये हमसे नहीं हो पाए। मतलब वो जो गिव अप करने की टेंडेंसी है वो आजकल के यूथ में बहुत ज़्यादा दिख रही है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सोचने वाली बात है कि इतना बहुत जल्दी नेगेटिव या इतना बहुत जल्दी हेल्पलेसनेस वो कहाँ से लाते हैं। बिना प्रयास किए पहला स्टेटमेंट हमसे नहीं हो पाएगा, ये हम नहीं कर पाएंगे, हमको कुछ और काम दे दीजिए। तो आई थिंक मैम की जो बुक है वो यूथ को बहुत टारगेट करती है कि जहाँ बच्चे छोटी छोटी बातों को ये कहते हैं वहाँ पे वो समझें कि जीवन में जिस उम्र में वो है वो तो अभी सिर्फ शुरुआत है, जीवन में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं। और हम लोग साइकोलॉजी में कहते हैं बड़े अच्छे से कि जब आप आईसीयू में एडमिट होते हैं तो जो मॉनिटर होता है उस पर लाइनें ऐसे ऊपर नीचे जाती हैं। ये ऊपर नीचे जाना ही ये बताता है कि आप जिंदा हैं। अगर लाइन सीधी हो जाएगी तो डॉक्टर सॉरी कह देगा। तो जीवन में समस्याएं ऊपर नीचे की तरह आती ही रहती हैं और यही आपके जिंदा होने का सबूत है। अब आप ये कहें, अक्सर बच्चे कहते हैं मैम ऐसा कुछ हो, मुझे प्रॉब्लम ना हो, मुझे स्ट्रेस ना हो, तो हम लोग बड़े आश्चर्य से कहते हैं भाई ऐसी कौन सी जिंदगी होगी जिसमें प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। तो आई थिंक द बुक टारगेट्स द यंग जनरेशन टू वेरी वेरी ग्रेट एक्सटेंट कि सब कुछ आपके हाथ में है, बस आप उसको समझ के देखिए और अपनी सेल्फ टॉक जल्दी से जल्दी शुरू करिए। अब मैं अनिल सर से बात करना चाहूँगी। सर मेरे यूथ वाले कमेंट में, सर हम लोग तो टीचिंग में हैं लेकिन सर बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत सारा यूथ को डील करते हैं और यूनिवर्सिटी जैसे प्लेटफॉर्म पे मुझे लगता है कौन सी ऐसी तरीके की समस्याएं जो आती ना हो। तो सर आपको क्या लगता है कि ये बुक का जो थीम है, ये जो टाइटल है, ये जो मैसेज है वो यूथ के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, वो इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं? Anil sir. Good evening, ladies and gentlemen, and esteemed members of the panel. At the outset, my deep indebtedness and gratitude to Professor Dr. Agrawal for making part of this wonderful evening, just sponsored by LMA. So, on behalf of Amity University, my gratitude to LMA for hosting this event. Having said that, मैंने बहुत पहले एक किताब पढ़ी थी जिसने मुझे बहुत स्कूल डेज में प्रभावित किया था। काफी लोग वो बुक पढ़ते हैं, आई डोंट नो आपने पढ़ी है कि नहीं। वो बुक है बाय एन रैंड, एटलस श्रग्ड, और इस बुक की पहली स्टेटमेंट थी हु इज जॉन कैट। उसके बाद में मुझे ये दूसरी बुक मिली जिसकी पहली पंक्ति ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो पहली पंक्ति कहती है द लॉन्गेस्ट जर्नी इज इनवर्ड। दैट मींस वी ऑलवेज ट्रैवल इनवर्ड। और जब हम अंदर ट्रैवल करते हैं और अपनी इनर कोर और इनर स्फीयर से मिलते हैं तो एक टॉक शुरू होती है। ये मेरे शब्द नहीं है, मैडम के हैं। तो ये जो टॉक होती है उसको मैडम ने बोला है कि किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैडम ने बताया हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, पिछले 10 साल से यही काम कर रहे हैं। 7000 बच्चे हैं और बच्चे तो सब तरीके की हरकतें करेंगे। हमें उनको बताना पड़ता है, जैसे मैडम ने कहा जीवन में 2 ही व्यक्ति होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक तो वो है जो पैदा नहीं हुए, दूसरे जो मर गए। उसके बीच में सबको प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रॉब्लम से परटर्ब नहीं होना, इसके अंदर मेथड ऑफ सेल्फ टॉक है, वो बहुत यूजफुल है। इस बुक के अंदर ऑथर 7 मंत्रास की बात करता है, जैसे ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बात करता है। टॉक्स अबाउट हाउ टू टॉक योरसेल्फ पॉजिटिवली विद इंक्वायरी, मेकिंग अ पॉजिटिव इंक्वायरी रादर देन ब्लेमिंग। इट टॉक्स अबाउट expressing words of appreciation and gratitude. तो मेरा मानना है कि this book is a beautifully crafted, छोटी सी पतली सी बुक है। मैंने तो अपने लिए 10-15 कॉपी मैडम से रिजर्व करा ली है, किसी को आप देना चाहें तो भी बहुत अच्छी चीज है। It's a very nice book. So, and I read this book and I was completely amazed. Not that the wisdom expressed in the book is not available elsewhere. It's definitely. But the way it has been packaged, taking away all the preachings and everything, making it a very practical and good combination. Congratulations, Professor Agrawal, for putting it all through. Wonderful. She is a professor with Amity University, Lucknow campus, और बेहतरीन काबिल प्रोफेसर हैं और ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को हेड करती है। I would request, if you want to see the magic of Center of Excellence, you should visit Amity University. Thank you very much, ma'am.
थैंक यू सो मच सर। बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे यूथ हो गया, प्लस मैम ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस बताए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर सोसाइटी का रह गया है जिसको हम बिजनेस या एंटरप्रेन्योर्स नाम से कहते हैं। उनका तो नाम ही काफी होता है क्योंकि उनके तो बिजनेस में हमेशा अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत होती है और जाहिर बात है चैलेंजेस भी बहुत होते हैं और उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि अगर किसी लॉस या किसी उसमें आए तो बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। ऑब्वियसली प्रॉफिट में भी दूसरी तरीके के चैलेंजेस होते हैं। तो रजनीश सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि स्टूडेंट और ब्यूरोक्रेट्स के अलावा आपको क्या लगता है एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये सेल्फ टॉक कितना इफेक्टिव हो सकता है? Thank you, Dr. Archana ma'am. सबसे पहले I would like to congratulate Dr. Manju Agarwal. A big round of applause for a beautiful book she's written, and I really wish you happy times. और जिस तरीके की आपने 7 मंत्रा हम लोगों को किताब में लिखे हैं, and I wish, I hope, I believe कि वो 7 मंत्रा आपके साथ हमेशा रहेंगे, and God is always there to bless you with healthy times and joyful times. मैं AMU की Alumni Association का बहुत धन्यवाद हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ for a beautiful shawl. Thank you AMU. लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन का मैं पार्ट रहा हूँ maybe since last 25-30 years, but incidentally I was away with other activities and I'm so fortunate कि आज मैं यहाँ पे हूँ as a panelist, and thank you LMA, thank you Gulati sir, thank you Mathur sir which is Bombay, thank you Renu ma'am, we have been talking to each other. तो मुझे मैम ये लगता है कि लाइफ आसान नहीं होती है, लाइफ को आसान बनाना पड़ता है। लाइफ आसान बनाई कैसे जाए? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नज़रअंदाज करके। तो दोस्तों, मैम ने बोला कि जब एक बिजनेस एंटरप्राइज में एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ या एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, तो मैं जब बैठता हूँ, जब मेरा एक वर्क फोर्स है एंड एक विजन के साथ, एक एजेंडा के साथ जब आगे बढ़ते हैं, थिंग्स कभी गुस्सा भी आता है, देन आई टॉक टू माई सेल्फ, नहीं, एंगर इज पॉइजन, आराम से कंट्रोल। सो जस्ट ट्राई टू फिडल आउट कि किस तरीके से अपने से बात करके देन आई ब्रिंग आउट द एजेंडा। हमारी इंडस्ट्री में आज की तारीख में बहुत ज्यादा ऑन द टोज चलना पड़ता है, लॉट मेनी R&D एक्टिविटी, आई मीन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स मैम, क्योंकि इट इज सो कॉम्पिटिटिव नाउ। एंड आई बेसिकली मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल एंड डेकोरेटिव पेंट्स, और पेंट इंडस्ट्री इतना क्राउडेड है, उसके बावजूद भी एंड प्लस हाइजीन केमिकल्स आल्सो, सो वी ट्राई टू बी देयर, बी ऑन द फोकस। तो टीम को जब मैं लाता हूँ सामने, तब अपने से पूछता हूँ कि अब इसको मैं कैसे आगे लेके जाऊँ। तो दैट सेल्फ बिलीफ, that self talk, then it drives my team forward। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो क्वोशंट है आज की तारीख में वो हैप्पीनेस का है। हम जीडीपी की बात करते हैं, भूटान जैसी एक छोटी सी कंट्री वो बात करती है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स की, GHI की। तो जब तक हमारा टीम, हमारी टीम या हमारे वर्कर्स या हमारे स्टाफ या जो भी इंटीग्रेटेड है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो खुश नहीं है, then things really don't work। तो eventually we need to innovate, हम इनोवेट करते रहते हैं, लेकिन इनोवेशन जब आता है, जब मैं अपने आप से बात करता रहता हूँ, चूंकि मैं एक गोल्फर भी हूँ, गोल्फ एक ऐसा स्पोर्ट है कि 2 घंटे मैम हम लोग जब गोल्फ में रहते हैं तो ईच टाइम वी टॉक टू द बॉल, बॉल से बोलते हैं कि अब मैं कौन सा बल्ला, देयर सो मेनी क्लब्स इन दैट, जो डिस्टेंस कवर करता है, देन द बॉल टेल्स मी कि यस यू हैव टू हिट 90 यार्ड्स, then I talk to myself। So वो जो self talk होता रहता है in the sport also, so that really drives, you know, so self talk is very important, चाहे वो corporate में हो, चाहे वो family life में हो, family life में भी यही होता है, we all are undergoing that। रोज डांट पड़ती है बीवी से, लेकिन उसके बाद फिर अपने आप से बात करके चुप हो जाना पड़ता है, खुशी लाओ और revolve around happiness। तो दोस्तों, keep talking to yourself and keep enjoying and be happy। I think this adds more to the vibrant spirit of the book कि हमने हर वॉक ऑफ लाइफ से समझने का प्रयास किया कि इस बुक की कितनी सार्थकता है, ये बुक किस तरीके से हर वर्ग के व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, और सेल्फ टॉक की जो बात जो अक्सर लोग ऐसे हंसी में उड़ा देते हैं, वो वाकई कितनी इफेक्टिव है। आपको जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए कुछ बहुत अलग तरीके की सोच लाने की आवश्यकता नहीं है,
और जो जीवन में अलग कुछ पाते हैं उनके सर पे सींगे भी नहीं होती हैं। बस ये सोचने की बात है, अक्सर लोग कहते हैं ना, अरे वो तो उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, या वो इस मुकाम पे हैं तो वो कितने अच्छे हैं। पर यकीन मानिए जो जहाँ भी पहुँचा है या वो जिस भी मुकाम पे है उसने जीवन में निश्चित कुछ किया है, कुछ अपना एफर्ट दिया है, सेल्फ टॉक किया है, जिसकी वजह से आज वो वहाँ पहुँचा है। मुझे लगता है इस बुक के स्पिरिट को बहुत बड़ा सलाम है, और जितना हो सके जिनसे आप बात करें उनसे इस बुक का मैसेज ज़रूर पहुँचाएँ। और जैसा भी सर ने कहा, गिफ्ट करने के लिए भी बहुत अच्छी है कि आप किसी को कुछ डेकोरेटिव आइटम दें, उससे अच्छा आप किसी व्यक्ति को, अब डायरेक्टली कह देंगे तो शायद व्यक्ति बुरा मान जाएगा, लेकिन आप इनडायरेक्टली उसको ये बता सकते हैं कि सारी जीवन की समस्याओं का समाधान एक सेल्फ टॉक। बस जानिए, समझिए और अपने जीवन को सुलझाइए, उलझाइए नहीं। थैंक यू सो मच। आप सोचिए कि मेरे पास माइक फिर आ गया। मैं थोड़ी सी बात कुछ और कहना चाह रही थी। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं जिंदगी में। हर रोज सुबह एक किताब से शुरू होती है और एक पन्ना पढ़ती हूँ, और चाहे जिस भी पोस्टिंग पर रहे, चाहे गदर मच गया हो, लेकिन न्यूज़पेपर नहीं खोला जब तक कि वो चीज़ नहीं पढ़ी, है ना। जो सेल्फ टॉक है वो सुबह से शुरू होती है कि हमने शुरुआत किस चीज़ से शुरू करी। तो खैर, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, और जब मंजू जी की मैंने किताब पढ़ी तो ये मुझे बहुत सरल और रीडेबल लगी, क्योंकि बहुत सी किताबें जहाँ साइकोलॉजी शब्द आ जाता है तो हम सोचते हैं कि बड़ी गूढ़, बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ हुई। तो बहुत ही आसान तरीके से इन्होंने जो बताया है, और फिर हाँ, इनके जो 7 मंत्र हैं मैंने अपने को नापा उनके विरुद्ध कि भाई मुझे कितने नंबर मिलेंगे इनके 7 मंत्रों में। तो मुझे लगा हाँ, मुझे भी ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे इसमें। एक चीज़ मैं और कहना चाह रही थी, आज के इस समय में जबकि हम अपने सिर्फ फोन से अलग ही नहीं हो पाए, अपने व्हाट्सएप से अलग नहीं हो पाए, यहाँ पर LMA की वजह से, आप सबकी वजह से इतने सारे लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, ये देखकर बहुत बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि आप अपने लिए ताली बजा, क्योंकि आजकल के समय में शायद आपने पढ़ा हो कि लोग अब AI से रोमांटिक रिलेशनशिप कर रहे हैं। AI के विरुद्ध केस दायर हो रहे हैं, क्योंकि आपको 24 घंटे कोई चाहिए जिससे आप बात कर सकें, तो अपने आप से बात कर सकें, या कोई पड़ोसी है, कोई है, किसी और से बात करें। लेकिन AI से बात कर करके सुसाइड्स भी हो रहे हैं, और AI बता भी रही है कि फांसी का फंदा ऐसे बांधना है। तो ऐसे खतरनाक समय में आप सब ने इसका आयोजन किया, आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और जो AMU बॉयज एसोसिएशन है, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द बॉयज हु आर हियर, एंड इट इज वंडरफुल जो आप सब ने हम सबको यहाँ इकट्ठा करा। और मेरे लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतने प्रबुद्ध वर्ग के सब, क्योंकि सबके पास अपने अपने अनुभव होंगे, अपने अपने, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया अनुभव होंगे जिनसे बहुत सीखने को मिलेगा। तो मैं बहुत आभारी हूँ यहाँ आने को मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इस पुस्तक को पढ़िएगा ज़रूर और नापिएगा ज़रूर। थैंक यू मैम। और आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि AI कहीं ना कहीं यूथ को भी भटका रहा है, एंड यूथ जो है वो कुछ पॉजिटिव एंड बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं AI के, बट जिस तरीके से यूथ उस पर इंगेज हो रहा है और वो अपनी पढ़ाई से हट रहा है, तो वो भी एक सोचने वाली चीज़ है। और वो सेल्फ टॉक तो आई थिंक वो AI से ही रह गई है, इवन फैमिली मेम्बर्स से भी नहीं रही है। सो सर, एनी क्वेश्चंस यू वांट टू से? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे ये बुक पढ़ी है, और हम जानना चाहेंगे उनके व्यूज़, उनके क्या क्वेश्चंस हैं। अगर क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ यू कैन टेक योर क्वेश्चंस, यू कैन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल प्रेजेंट हियर। आई एम डॉक्टर रितु, और मैम के साथ एसोसिएशन मेरा बहुत 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 साल से है। मैं यहाँ पर किताब पढ़ने के लिए जो पढ़ा है मैंने वो नहीं शेयर करूँगी। मैम जब किताब लिख रही थी और उस फेस में हम जब मैम से मिल रहे थे, मैं उसको शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज वो जो लिखा है उसमें वो उसको जीती है। मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि मैम अपने कुछ काम से परेशान होकर उनके पास गई, कुछ बात किया, वो अपनी किताब लिख रही है, और जब लिख रही है तो उससे मुझे मंत्रा मिला कि मुझे अपने आप को कैसे मैनेज करना है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ राइटर, हाउ राइटर लिव्स विद द वर्क। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कंटेंट आता है, और आप लोग यहाँ पे सारे लोग आए हैं, किताब जरूर से पढ़िएगा, लेकिन उससे ज़्यादा ये मैम से कनेक्ट करेगा, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने उस पर लिखा नहीं है, लेकिन वो अपने लाइफ में उसको जी रही है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ऑथर, एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल एंड हेल्प, मतलब बहुत मज़ा आता है मेरे साथ काम करने में, और बहुत सारा काम हम साथ कर रहे हैं। लेकिन दिस बुक इज रियली अ वंडरफुल बुक, सेल्फ टॉक ज़रूर से करिएगा। और बहुत ज़्यादा मैम ने इस पर
किताब का नाम क्या होगा, किताब का कंटेंट कैसे पढ़ेंगे, उस सब फेस में हम लोग मैम के साथ में काम किए हैं. तो इट्स अ रियली हार्ड वर्क. सो किताब मैंने पढ़ी और आप सब लोग जरूर से पढ़िएगा. थैंक यू सो मच. Any more questions from the audience? Namaste and a very good evening to all the respected dignitaries. बहुत शॉर्ट स्टोरी है मैम के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. इट्स ह्यूज ऑनर एंड आई फील प्रिविलेज कि मुझे इतने डिग्निफाइड और रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज के बीच बोलने का मौका मिल रहा है. मैं बहुत अबोध हूँ, तुच्छ हूँ, मैं क्या बोलूँ, इतने सारे इंटेलिजेंट लोग हैं. एक एमिटी यूनिवर्सिटी ने हैप्पीनेस कोच प्रोग्राम चलाया था. तब मैम को आई थिंक पहली बार देखने का और सुनने का मौका मिला था, जूम के थ्रू. इट वॉज अ वंडरफुल हैप्पीनेस कोच प्रोग्राम एंड एट दैट टाइम आई वॉज नॉट वेल. सो एक छोटी सी बात थी, मैंने मैम को बोला कि मैम मेरी तबीयत खराब है एंड माई माइक, मेरा वीडियो ऑफ था. तो शी वॉज लाइक कि नहीं, यू ओपन योर वीडियो. एंड फिर मैम ने कहा यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल. तो मैंने कहा नहीं मैम, आई एम नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल. उन्होंने कहा नहीं, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ वर्ड्स, एनर्जी, सेल्फ टॉक. और आपके मेंटोर्स, आपके टीचर आपको कैसे मोटिवेट करते हैं. मैंने बहुत अच्छे से वो सारा प्रोग्राम उसको रीड किया एंड आई गॉट द सर्टिफिकेट. सो अबाउट द बुक, ऑब्वियसली सेल्फ टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम अगर किसी को बोले तुम बुद्धू हो, तुम बुद्धू हो, तो उसके दिमाग में ये बैठ जाएगा. बट अगर हम उस अपने को कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, हम ये सोचें कम व्हाट मे, कोई भी सिचुएशन हो, कम व्हाट मे, वी हैव टू टैकल दैट सिचुएशन. और फिर हम बहुत ही अपने गोल्स और बहुत सी विक्ट्रीज पा सकते हैं. सो आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू बाय दिस बुक. मैंने भी खरीदा है एंड आई डोंट रिमेंबर किसने कहा था, आप गिफ्ट भी कर सकते हैं. इन साहा वर्ड हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं जो ऑब्वियसली रखी रहती हैं कुछ है, लेकिन अगर हम किसी को इतनी ब्यूटीफुल बुक गिफ्ट करते हैं तो उसकी लाइफ चेंज हो सकती है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बुक एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेल्फ टॉक. सो थैंक यू वंस अगेन एवरीवन. थैंक्स अ लॉट. Thank you so much, ma'am, and this was a wonderful experience to know about the book and learn about the book. But I would like to share my own experience here, meeting Manju ma'am. And I think before I even met you, I always knew about you. Somehow, I think universe has this kind of way of bringing those people together. And I must tell you, you had come for a session at our training workshop, and you had said that you are writing a book. I heard about it that time, and you won't believe, ma'am, till the time I'm sitting here today, every single thing was leading me. It would show up in my feed, it would show up in Amazon, it would show up on the newspapers, it would show, everything was pointing towards psychology of self-talk. So I think that, there's this saying that if the universe wants you to do something, it creates these situations, and it used you as a medium to come up with such an important book. So there is, I think, something very, very important in this for lots of people. Like ma'am had said, that it's a very, very, world which is very depressing for the youth today. Because we work with adolescent girls, we look at the kind of pain and the fear and the kind of, uncertainty they have. If I think this book can reach those children as well, there's a lot it can do with them and what they want to do. And today I'm going to buy this book and you're going to sign it for me. And I'm going to read this because I think something or the other wants me to learn what you are trying to say in this book. So thank you so much, ma'am. Eminent panelists, ladies and gentlemen, good evening, namaskar. By way of introduction, I am Air Commodore Manish Agarwal, retired from the Indian Air Force after over 35 years of service to the nation. I heard someone that they have not read the book, so I thought I had written down a review as a reader. But why me? So then it's nepotism. Dr. Manju Agarwal, I am her nephew, and I am blessed to have her as my second mother. Now when we talk of a book launch, drawing a parallel from the human life cycle, it's something akin to a Navjat Shishu ki Muh Dikhai, wherein the new mother proudly showcases her beautiful creation in all its splendor and regalia. And so, at the outset, I would like to express my heartfelt gratitude from her behalf to each and every one of wonderful people of you because of your august presence at the occasion of the launch of Dr. Agarwal's latest creation in the literary world. Talking about Dr. Agarwal is like, for me, it's like lighting a diya to the sun.
multi-talented, multi-accomplished in multiple disciplines. She is truly a torch bearer of her generation. We start talking about her, that would require another session. So now back to the book. Now we all know that the newborn screams to get attention of everyone else. And so is this book, Psychology of Self-Talk. Screaming not only for your attention, but for it to be savored, to be devoured, to be imbibed, and to be internalized. I have read it, reread it, and read again. And I keep referring to it on a daily basis. And why so? And that's my perspective, my interpretation. Self-talk as I understand is talking to oneself. And how do we talk to us? Any talk, any communication involves words. Now that was the first eureka moment when we started going through the book. That words have power. Words have energy. Although we use words since our birth till the dying day for communicating, but we never knew that words had power and words had energy. So that ignited my curiosity further. The initial chapters explained the complex concept in a lucid, cogent, and succinct manner. Basically in a very simple, free-flowing manner. The proof of the rigor is corroborated with reference to the ancient texts and scriptures which have been propagating the power of chants since time immemorial. And for the doubters, there is adequate scientific evidence, thereby negating any personal biases. Like they say, the proof of the pudding is in eating. Impact of the power of self-talk as manifested by stalwarts of their era. And Dr. Agarwal had mentioned the stories that she has written about Amitabh Bachchan, Arunima Sinha, Roger Bannister and all. It forms one full complete chapter. So now once you start going through it, in that sequence, the book becomes unputdownable. Now because the author offers you simple, easy to understand, easy to assimilate, easy to implement, very effective 7 Mindicure mantras, and that too on a platter. It is more so important because even today in our society, people find mental illness as a taboo. They are willing but they hesitate to approach someone. So for them, it's something served on a platter. You follow these mantras, you internalize it in your daily routine, you'll find your life becoming easy, better and worth living. You'll feel the long forgotten smile return on your beautiful visage. It would lead to happiness and peace and consequently success, because success for everyone has a different benchmark. Someone wants to be rich, someone wants to buy a new house, someone wants to buy a car. But happiness and peace is a constant. So if you are happy and peaceful and you do your job the way you want, the right way, success will definitely follow. And so this book is not a one-time read. It's like a ready reckoner for use and situations and challenges that life keeps throwing at us on a daily basis. We need to refer to it every day. And in the end, thank you very much once again for giving me a patient listening. Happy reading and Jai Hind. Thank you. Good evening everyone. Thank you Manju madam for inviting me for this wonderful evening. और आपके जरिए बहुत सारे और लोगों से भी मुलाकात हो रही है. मैं डॉक्टर कुमुद श्रीवास्तव, प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट. और मैडम से मुलाकात तो बहुत पहले हुई थी मैडम रिचमेंट फेलोशिप के प्रोग्राम में. बट एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग मिलते हैं. और शायद ये 7 मंत्रा के अलावा और बहुत सारे मंत्रा मैडम शेयर करती हैं, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं. और वो मंत्र जब हमारे पास में आता है वो ऑटोमेटिक सेल्फ टॉक में कन्वर्ट हो जाता है. ये सब हम लोग सुबह से शाम से बात कर रहे थे, जिसमें स्ट्रेस की बात आई, यूथ की बात आई, सेल्फ टॉक और मोटिवेशन निकल के आया. मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि एक मतलब सबके परिवार की एक स्थितियाँ होती हैं. कभी कभी कुछ विषम स्थितियाँ भी होती हैं जिसमें आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं. परिस्थितियाँ आपको साथ नहीं देती हैं. और अगर उम्र भी थोड़ी सी हो, मतलब अगर 70+ में हो और आपका स्पाउस बहुत बीमार हो, तो विषम परिस्थितियाँ और विकट हो जाती हैं. ऐसी परिस्थितियों में रहते ऑल ऑफ अ सडन एक लड़की ये सोचती है, और ये मेरे को बोला परेशानियाँ बहुत है लेकिन हम तो परेशानियों में भी मोती ढूंढ लेते हैं. ये एक टैगलाइन जैसी बन गई. परेशानियाँ बहुत है, उस परेशानियों में भी मोती ढूंढ लेते हैं. एक ऐसा सेल्फ टॉक जिसमें एक सेल्फ मोटिवेशन निकल गया और जिस काम के जिस उद्देश्य में वो व्यक्ति था उसको सक्सेसफुली करता रहा इन स्पाइट ऑफ सो मेनी डिफिकल्टीज. तो सेल्फ टॉक में यहाँ तक लेके जाता है. और मैं बड़े फक्र के साथ कहूँगी कि यह बात मेरी मम्मी ने कही, जो साथ में आप मेरे साथ है भी, मैं उनको लेके आई हूँ कि आपसे मिलवाने के लिए. तो इस तरह की सेल्फ टॉक आपको मोटिवेशन में कहाँ तक ले जाती है
cannot explain here. So thank you very much. It was a wonderful evening and wonderful discussions that we are sharing here. रेणु जी थैंक यू, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आज इतना बढ़िया प्रोग्राम आप लोग रेणु जी आपने किया, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। एक से एक डिग्निटीज आई में, एक की तारीफ करूँ तो आधा घंटा लग जाएगा, वो आप चाहेंगे नहीं। तो अनिता भट्टाचार्य इज ए वंडरफुल लेडी, और आप ये देखिए इनकी रोज आती है, गवर्नर से मिलती है, और बच्चों की जो किताबें इन्होंने लिखी हैं वो भी यहाँ पर लॉन्च हो, ये मैं चाहता हूँ। अच्छा, रनीश सेठी आइकॉन ऑफ लखनऊ, इतने मुश्किल काम कर रहे हैं, तो हेड ऑफ प्लीज गिव ए बिग अपलॉज टू बोथ यू। अर्चना चोपड़ा जी ने एक बार हम लोग को बुलाया था, फिर बुलाएंगे, और आज आप हमारे कैंपस में आए हैं, आई वेलकम यू। मंजू जी, जब हमको जरूरत पड़ती है, जब भी हमको यहाँ पर साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है, हम लोग का स्ट्रेस होता है, तो आप सॉल्व करते हैं। क्योंकि मैं आपको ये बता दूँ, मैं सीनियर मोस्ट हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर जो एक साइकाइट्रिस्ट थे बहुत बड़े, जिन्होंने इन्वेंट किया था यूपी में साइकोलॉजी, तो वो अपनी क्लिनिक रात को 11 बजे खोलते थे, वेरी एमिनेंट पर्सन, और 2 बजे तक रहते। बड़े बड़े लोग आते थे, इंजीनियर, डॉक्टर, ब्यूरोक्रेट, सब उनके पास आते थे। तो आप जो आती हैं हमको यहाँ पर स्ट्रेस देते, तो मेरा बस एक छोटा सा वो है कि आप इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी नहीं, एमटी में पहले से भेज दें, तो मुझे ये खाली जानना है कि जो आपके बच्चे कोटा में जो हो रहा है, तो आप उसमें कुछ बता सकती हैं हमको कि क्या उनका आपकी किताब से, या वहाँ जाकर, या वहाँ बच्चों को इस तरह से कर सकती हैं, वीडियो से भी, तो ये आप प्लीज। कारण इम्पोर्टेंट नहीं है, कारण एक फीलिंग के लिए 10 कारण हो सकते हैं। उस फीलिंग को हम किस एंड तक ले जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, और कैसे उस फीलिंग को हम चेंज करें ये इम्पोर्टेंट है। तो कारण जानने में बिल्कुल कोई महत्व नहीं है, कौन किस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करेगा। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आए हैं कि क्लास में टीचर ने डांटा, बहुत बच्चों को टीचर डांटती है, बट एक किसी बच्चे ने उसको एकदम दिल पे लगा लिया, ह्यूमिलिएशन फील किया। जब उसको रिग्रेशन में ले गए तो 4 साल की बच्ची वो, और वो कह रही है कि मैं बेंच पे खड़ी हुई हूँ और टीचर मुझे डांट रही है और समझ रहे हैं। तो वो जो सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन था वो उसका लाइफ लॉन्ग था, और वो उस सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन से उसको एस्मा था, उस सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन से उसको पैनिक अटैक्स आ रहे थे, घर का खाना नहीं डाइजेस्ट कर पा रही थी, और जैसे ही ये सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन उसका रिलीज किया, उसका डाइजेशन भी ठीक हो गया, उसका एस्मा भी ठीक हो गया। तो द क्वेश्चन इज नॉट व्हाट इज द रीज़न, द रीज़न इज कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपने सिचुएशन में क्या रिएक्ट किया, और इसको कैसे हील किया जा सकता है। और बिल्कुल जो आप कोटा की बात कर रहे हैं, अगर मैंने इस किताब में भी जिक्र किया है कोटा का, और उस पर ज़रूर काम किया जा सकता है, ऑनलाइन भी आराम से काम किया जा सकता है, और इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मेरे और कोलीग्स भी ज़रूर तैयार हैं। Any more questions from the audience? Can I ask, ma'am, Last question. Ma'am, you also mentioned that there are many books which talk about, you know, how you can, the subconscious mind को आप कैसे वो कर सकते हैं. But again, they are in a very preaching mode. They basically talk mostly about how you can, you know, external things को आप change कर सकते हैं. How is your book different? Internally अगर हम जाते हैं तो क्या internally change होता है, externally change? नहीं, इंटरनल चेंज की बात हमें करनी है, बिकॉज जब हम अपने को चेंज कर लेते हैं तो बाहर तो चेंज हो ही जाएगा, हमारा परसेप्शन चेंज हो जाएगा, हमारी टॉकिंग चेंज हो जाएगी, हमारी कम्युनिकेशन चेंज हो जाएगा, जब हम खुद को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और जब हम उस चीज़ को एक्सटेंड करते हैं बाहर। तो हमें तो केवल अंदर की बात करनी है, और इसमें प्रीचिंग बिल्कुल नहीं है, या क्यों करना चाहिए ये नहीं है, कैसे करना चाहिए इस पे। जैसे आपने अमिताभ बच्चन का एग्जांपल दिया, सो यू गेव एन एग्जांपल ऑफ हिज बीइंग बैंकक्रप्ट। हाँ, तो उसमें है कि उसने फिर उस समय क्या सेल्फ टॉक, और अरुणिमा सिन्हा ने क्या सेल्फ टॉक, तो उसकी बहुत सारी हमने रिसर्च की, उनके इंटरव्यूज, उनके जो कोट्स हैं, उनकी जो राइटिंग्स हैं, वो सब देख के, और तब उसको इंटरप्रेट किया कि उन्होंने क्या सेल्फ टॉक, दैट कैन चेंज, और फिर उसके बाद मंत्रास अलग से। फीलिंग पे आपने बात करी, अगर हम अपनी फीलिंग को कंट्रोल करें, यू डोंट फील एनीथिंग द होल डे, तो उस पे आपका क्या कहना है? अगर आप दिन भर कुछ नहीं फील करेंगे तो क्या होगा, इसमें एक नई रिसर्च की जरूरत है। बहुत सारी फीलिंग कम और ज्यादा आपने बताया कि कुछ बच्चे होते हैं कुछ ज्यादा फील करते हैं, कुछ कम करते हैं। नहीं, अब सिबलिंग राइवलरी है, जैसे अब माँ बाप तो बहुत अच्छे से सभी बच्चों के साथ बिहेव करते हैं, फिर भी सिबलिंग राइवलरी क्यों आ रही है, व्हाट इज देयर परसेप्शन। सो
तो हम किसी भी सिचुएशन को कैसे परसीव कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट। कंट्रोल ऑफ फीलिंग वर्ड हम नहीं यूज करना चाहेंगे। मैनेज योर फीलिंग्स, मैनिफेस्ट योर फीलिंग इन अ पॉजिटिव मैनर, बट नॉट कंट्रोलिंग और सप्रेसिंग। सप्रेशन इटसेल्फ इज नॉट गुड। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो मैडम ने शुरुआत में एक हवाईयन मेंटल असाइलम का बात कही है, जहाँ पर एक नए डॉक्टर आए, यूलेल का नाम था, और उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि 90% लोग ठीक हो। He never visited the ward. What he did was, he looked at each patient's history and then using a technique which is simple, akin to Gayatri Mantra, though it was in Hawaiian, he kept Ho'oponopono. So he kept on chanting that thing. That shows one thing, that this world is actually a reflection of your inner self. And if you can, and you can only correct your inner self, if you can do that, you will see the change outside. That's the reality. को एक्सटेंड करते हुए आई थिंक दिस कैन बी योर टेक अवे ऑल्सो। मुझे आपने बहुत अच्छा ये याद दिलाया। 4 लाइन केवल उन्होंने बताई हैं कि ये 4 लाइन आप किसी भी सिचुएशन में कभी भी अगर बोलेंगे तो उसके मैजिकल इफेक्ट्स हैं, और वो 4 लाइन आप लोग कभी भी किसी भी सिचुएशन में बोल सकते हैं। लोगों ने ट्रैफिक जैम में भी बोली हैं, लैपटॉप खराब होने पर भी बोली है, लोगों ने कहा है कि इससे हमको लाभ मिला। पर दोज 4 लाइन्स आर एंड वेरी सिंपल। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. These 4 lines are extremely powerful, और मैं अपने क्लाइंट्स के संग भी काफ़ी इनको यूज़ करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। कभी भी आप अपसेट हैं, कोई भी आपको नींद नहीं आ रही है, आप एंग्शियस हैं, कोई काम नहीं पूरा हो रहा पा रहा है, तो आप ये टेक अवे कर सकते हैं 4 लाइन। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, बट बिना कॉन्टेक्स्ट के भी बोलेंगे तो फायदा करेंगे। बैठे हुए हैं, इन सभी बातों के पूर्व वक्ताओं की सब बातों को सम्मिश्रण करते हुए एक 7 शब्दों का लिस्ट है, समराइज करता हूँ, जो हमको गॉड ने बर्थ राइट दी है। हैप्पीनेस, हेल्थ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड अवेयरनेस एंड लविंग रिलेशनशिप इन द फैमिली, peace and tranquility and connection with the God. Only thing we have to seek it, and how we have to seek it, I think that is there in the book of Madam. Thank you so much. Thank you so much. And as we are end of today's session, and very wonderful discussion we are having on this topic. And अनीता मैम ने एज एडमिनिस्ट्रेटर अपने इतने अच्छे व्यूज़ दिए कि हाउ शी टैकल इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ, कैसे वो उसको टैकल करती थी जो भी प्रॉब्लम्स आती थी विद सेल्फ टॉक। विंग कमांडर सर अनिल कुमार सर was already brief as an academician, so how the faculty and the students help this book as self talk, वो कैसे इससे टैकल कर सकते हैं। एंड एज अ कॉर्पोरेट फ्रॉम मिस्टर रजनीश सेठी सर ब्रीफ अबाउट दैट कि कॉर्पोरेट्स पे एक टारगेट्स रहते हैं, कॉस्ट टू कंपनी रहता है, CTC रहता है कि आपको यू हैव टू फुलफिल दैट टारगेट्स। तो उस टाइम पे क्या ये सेल्फ टॉक इज रियली वर्क, और या उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर रहता है जो कि हम आजकल देख भी रहे हैं कॉर्पोरेट्स में, लेट नाइट वर्क्स होते हैं, EY का हमने काफ़ी केसेस भी सुने हैं। सो हाउ दिस सेल्फ टॉक वर्क रियली इन योर कॉर्पोरेट्स और नॉट। आज अर्चना मैम जी हमारे साथ हैं, जो कि आज की मॉडरेटर भी थी, और सो ब्यूटीफुली शी मॉडरेट टुडे सेशन। हर सेक्टर से लोग थे और डिफरेंट क्वेश्चंस उन्होंने और रिलेटेड टू देयर फील्ड्स दे आंसर क्वेश्चन ब्यूटीफुली शी मॉडरेटेड। आई थिंक अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल द पैनलिस्ट एंड टू ऑल our moderators. So as a token of appreciation, LMA will also present a memento and say thanks to our panelists. So Rahul Dutt sir, I invite you to present a memento to Dr. Anita Bhatnagar ma'am. And very thanks to all the association today who collaborate with us. I'll invite Trati sir to present memento Dr. Anil Kumar sir. Professor Saab, good evening. Good evening, sir. Thank you so much. So we have Raj maybe also with us and Sachin ji also with us, जो कि I think मेरे टेलीविजन में तो मैं उनको first time ही देख रही हूँ LMA में. So I will request to join both of you to present a memento. I request to both of them to please present a memento to Dr. Archana Shukla madam, to present a memento to Rajneesh Sethi sir. Last
बट नॉट लीस्ट इतना अच्छा डिस्कशन हुआ सेल्फ टॉक पे, और आज सब हम जिनकी वजह से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एंड बहुत अच्छा लगा कि हाउसफुल था ऑलमोस्ट. सो मैरी क्लैप्स टू डॉक्टर मंजू अग्रवाल मैडम, और इनको तो मैं ही शायद मोमेंटो दे. I will request if anybody want to interested for a group photo there.